अदानी ग्रुप की कंपनीज की कुछ मुसीबतों का अंत नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ नई चीज हर रोज निकल के आ रही है। अभी जो रिसेंटली हुआ है वो ये हुआ है कि एमएससीआई में उनको उनकी जो वेटेज है 4 कंपनीज की उसको रिड्यूस किया जाएगा। और एमएससीआई एक ऐसा इंडेक्स है जो कि एफपीआई फॉलो करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। वो लोग इसको फॉलो करते हैं और वो अपने पोर्टफोलियो को वो रिजिड करते हैं अगर कोई चेंजेस आते हैं एमएससीआई के इंडेक्स में। तो ये जो 4 स्टॉक्स हैं जिनको मूडीज ने डिग्रेड किया है और बोला है कि ये अंडर दे आर अनस्टेबल, दे आर इन द पुअर क्वालिटी नाउ, इनके चलते जो है अदानी ग्रुप की इन 4 कंपनीज को हो सकता है आने वाले दिनों में नुकसान हो जाए। बात करते हैं पूरी डिटेल में। The Indian conglomerate Adani Group is facing a blow as index provider MSCI plans to cut the weightage of 4 of its companies, including Adani Enterprises, um, in its index. The move is a result of MSCI's reassessment of the number of shares that are freely traded. The controversy surrounding Adani Group started with a report by US short-selling Hindenburg Research, which accused the conglomerate of improper use of offshore tax havens and stock manipulation. The report has caused a crisis for the group, led by the billionaire Adani Group wiping off $110 billion from the value of the group's 7 main listed firms. जो 4 कंपनीज इस में इफेक्ट होंगी वो है अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन एंड एसीसी। एसीसी को अदानी ग्रुप ने अभी अभी थोड़े दिनों पहले ही अक्वायर किया था। Adani Enterprises is a coal miner cum incubator for new projects, is one of the firms that will have its weightage reduced by MSCI. Other companies include Adani Total Gas, a venture with France Total Energies, and Adani Transmission, a power transmission company. MSCI will reduce the weightage of ACC, a major Indian cement company acquired by Adani Group from Holcim last year. The combined weightage of these 4 companies of the MSCI Emerging Market Index was 0.4% as of January 30th. The changes will take effect from the March 1st. That means 28 फरवरी को ये इनका जो भी पोजीशन साइज है उसको रीबैलेंस करना पड़ेगा। मतलब जो भी फॉरेन पोर्टफोलियोज हैं उनको अपने स्टेक को रिड्यूस करना पड़ेगा और इस इंडेक्स के हिसाब से उनको बैलेंस करना पड़ेगा। आने वाले समय में 28 फरवरी तक थोड़ी और गिरावट इन 4 स्टॉक्स में देखी जा सकती है। नाउ क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों होगा? तो पैसिव इन्वेस्टर्स टू सेल स्टॉक्स टू रिड्यूस tracking error. Brand Freitas, a Periscope analyst who publishes a smart karma, states that the lower free float will require passive investors to sell stocks to reduce their tracking error with the index. There is also a possibility of selling from active investors before the change takes effect, as they try to sell before the passives. So imagine what will happen. There are people who have bought Adani shares for a long term. मतलब उन्होंने 2 साल पहले कहीं बहुत छोटी स्मॉल वैल्यू पे खरीदा हुआ है और होल्ड करके बैठे हुए हैं। बिकॉज देर इज नाउ सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, तो ये जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने स्टॉक्स को सेल करेंगे और कुछ एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। सो इस सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर देखते हैं कि अदानी ग्रुप की क्या प्रतिक्रिया होती है। Adani Group did not immediately respond to a request for comment from Reuters on Friday regarding the MSCI weightage reduction. The group has denied any wrongdoing in response to the Hindenburg report. Of course, they've been saying कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। और in conclusion, now what will happen? In the controversy surrounding Adani Groups and the allegations made by Hindenburg Research have led to a crisis for the conglomerate and a reduction in the weightings of 4 of its companies in the MSCI indexes. Passive investors will have to sell stock to reduce their tracking error with the index, while active investors may try to sell before the changes take effect. Adani Group has not responded to the recent developments. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 28 फरवरी जो लास्ट डे है MSCI को रीबैलेंस करने की, तब तक कुछ एक्टिव ट्रेडर्स हो सकता है पहले ही शॉर्टिंग शुरू कर दें और जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं
वो भी तब तक या उन पहले या बाद में अपने स्टॉक्स को एग्जिट कर लें। इसका मतलब मोटी मोटी तौर पे यही है कि आने वाले दिनों में अदानी के इन 4 स्टॉक्स में, विच इज अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल एनर्जी एंड एसीसी, इन 4 कंपनीज में हो सकता है आने वाले दिनों में और थोड़ी सेलिंग आती दिखाई दे। जहां तक कि रिजल्ट्स की बात है, अदानी पोर्ट्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं और आप देख रहे होंगे कि मार्केट गिर रहा है, अदानी पोर्ट अपने आप को होल्ड करके खड़ा हुआ है। अब बात आती है कि हमारा क्या स्टांस होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वी शुड स्टैंड आउट अंटिल वी फाइंड अ टेक्निकल सेटअप व्हिच सूट्स आवर एंट्री और एग्जिट। सो आज की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए। इनफैक्ट मैं एक न्यूज और पढ़ रही थी जहां अंबुजा सीमेंट को भी काफी सारे ब्रोकर्स ने डाउन ग्रेड किया है। तो अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट, ये 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि जिनकी रेटिंग डिग्रेड हुई है, मूडीज से भी हुई है, और बहुत सारे और इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं जिन्होंने इनकी रेटिंग्स को डिग्रेड किया है। तो इन स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, और वोलेटिलिटी जब मार्केट में होती है तो शेयर ऊपर भी बहुत तेजी से जाता है और नीचे भी बहुत तेजी से आता है। तो कई बार आपको समय नहीं मिलता है कि रिएक्ट कर पाओ आप सही समय पे। इट्स बेटर टू स्टे आउट, बट अगर कोई टेक्निकल सेटअप मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली गिव इट ऑन द टेलीग्राम चैनल। डू जॉइन मी देयर on my telegram channel, which is stockpro underscore online, or you can follow me on my YouTube channel, which is stockpro, and do join me for live trading from 10 to 11 every single day.